Good morning students, I am your English teacher. Today I am going to teach you lesson 2, the making of missile man. Children, have you heard about the missile man of India? What was his name? He is just like Superman who made missiles for India. He was also the 11th president of our country. In this lesson, we will come to know what has he been before taking office as president and how he became, how he reached the, how has he reached at the highest office of our country. In this lesson, we will come to know about his early life, his childhood and his education. So, let's begin. First of all, we will know his full name. His full name was Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. Children, he was the 11th president of our country. He came from a very middle class family, low middle class family I would like to say, but by the virtue of his hard work and determination, he has risen to the highest office of our country. बहुत ही मामूली परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से वो ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन से और अपने हार्ड वर्क से वो कैसे इंडिया के सबसे ऊंची पोस्ट पर पहुँचे. He learned to respect all the religions. He read Holy Quran and the Gita, and he believed all the religion. The main occupation of his family was फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोटी एंड रामेश्वरम. वो क्या करते थे, जो उनके पास एक बोट थी उससे जो पिलग्रिम्स थे, जो तमिलनाडु है वो वहाँ पर रामेश्वरम टेम्पल है, वो बहुत तीर्थ स्थान है हिंदुओं का, तो वो धनुषकोटी से रामेश्वरम और रामेश्वरम से धनुषकोटी तक पिलग्रिम्स को ले जाते थे. लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, वंस देयर वॉज अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन. बहुत ही भयानक एक तूफान आया एंड हिज बोट हैज़ गॉट डेस्ट्रॉयड. उनकी बोट डेस्ट्रॉय हो गई. तो इसके बाद उनकी फैमिली को अपने खाने पीने के लिए अपनी जो लाइवलीहुड था उसको कमाना बहुत मुश्किल हो गया. एट दैट टाइम द फैमिली हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज and Kalam also, he found it difficult to continue his studies. At that condition, he collected some tamarind seeds and sold them to a shop, and also he sold a popular newspaper, Tamil Dinamani, at Rameshwaram railway station and helped his cousin Samaddin in selling it. For this work, he got a very little money. Though his earning was little, but he was happy because he was able to care for his family. When Kalam was studying in a school, his favorite subject was English, mathematics, science and Tamil. He has written many poems in Tamil and English. He used to see the birds flying in the sky and wished to fly like that. So that passion inspired him to design SLV-3. At that time, there was no electricity in his house. So he had to study by the dim light of kerosene lamp. Kerosene lamp की रोशनी में वो पढ़ते थे till the 11:30, रात में 10:30 बजे तक. There was an interesting incident about his school life. Once his friend Ramananda Shastri was studying with him. He was the son of highest priest of Rameshwaram temple. जो उनका दोस्त था, वो रामेश्वरम के टेम्पल का जो हाई प्रीस्ट था उनका बेटा था. He was a Brahmin. Once there was a teacher who did not bear the Brahmin to sit with Muslim.
तो उनको ये सहन नहीं हुआ उनके टीचर को, उन्होंने जाकर कह दिया कलाम को कि वो पीछे की बेंच पे जाकर बैठ जाए। दोनों बच्चे इस बात को सुनकर रोने लगे। देन when Ramananda's father came to know about the incident, he sent for the teacher and told him what he would done only breed communalism. उन्होंने टीचर को कहा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है इससे सांप्रदायिकता की भावना, भेदभाव की भावना पनपेगी, इसलिए ये ठीक नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है उनकी स्कूल लाइफ के बारे में या उनकी स्टडीज़ के बारे में। एक बार उनके टीचर थे मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर, वो एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे। वंस ही इन्वाइटेड कलाम टू हैव लंच विद हिम, बट टीचर्स वाइफ वॉज एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन, एक बहुत ही पुराने विचारों की महिला थी उनकी वाइफ, तो उसने एक मुस्लिम को फूड सर्व करने से मना कर दिया। तो टीचर जो थे मिस्टर सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने अपनी फेवरेट स्टूडेंट को खुद फूड सर्व किया। उनकी वाइफ ने जब ये सीन देखा तो उसको वो इंस्पायर हुई और अगली बार जब कलाम को उन्होंने इनवाइट किया तो उसने खुशी खुशी लंच सर्व कर दिया। इस इंसिडेंट से कलाम को ये सीखने को मिला कि परसिवरेंस मेक्स मिरेकल, धैर्य रखने से चमत्कार भी होते हैं। When Ramananda joined a boarding high school, his family was not at the position to pay the huge amount as a fees. So at that time, his sister came ahead and he mortgaged her ornament to raise the required fee. उनकी सिस्टर ने अपने ऑर्नामेंट्स गिरवी रख दिए उनकी फीस भरने के लिए जब वो MIT में उन्होंने एडमिशन लिया। तो MIT में एडमिशन लेने के बाद जब उनकी फैमिली के पास पैसा नहीं था तो उनकी सिस्टर आगे आई। कलाम ने जब जैसे ही उन्होंने प्रॉमिस किया कि जैसे ही उनकी जॉब लग जाएगी और जो वो कमाने लग जाएंगे तो उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनको लौटा कर देंगे, और जैसे ही उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, उन्होंने कमाना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया। जीवन के हर वक्त अपने करियर के हर एक स्टेप पर वो सक्सेस उनको ऐसे फॉलो करती रही जैसे कि उनकी परछाई हो। उन्हें पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला और उसके बाद देश का हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न मिला इन 1997। तो जब उनको भारत रत्न मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि आई स्टिल रिमेंबर रामानंदास क्राइंग इन द क्लास व्हेन आई चेंज द रो, कि जब मुझे अभी तक रामानंदा का रोना याद है जबकि मैंने अपनी रो चेंज की थी। तो बच्चों, ऑन 25 जुलाई 2002 ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो जब वो प्रेसिडेंट बने तो जिस स्कूल में वो पढ़े थे वहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिठाइयाँ बांटी गई और टीचर्स ने असेंबली में उनके बारे में बताया बच्चों को और उनको अपना एग्जाम्पल, अपना रोल मॉडल बनाने के लिए कहा। तो ये था मिस्टर कलाम के बारे में, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में ये थोड़ी सी नॉलेज थी जो मैंने आपको दी। आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन एंड आप उनकी तरह बनना चाहेंगे तो आपको ये लेसन ज़रूर मोटिवेट करेगा। इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब PDF के थ्रू भेजी जा चुकी है, आप लोग इसको प्रिपेयर करिए, नोटबुक में लिखिए। ओके, थैंक यू।